Welcome back. In this video lecture of physiology, we will be discussing about a very important concept from the chapter Body Fluids and Circulation, and this lecture is all about RH incompatibility. What is RH incompatibility? How it is responsible for causing erythroblastosis fetalis? What is hemolytic anemia? We will discuss all these things in detail. Let us discuss the things in detail. The first point we will discuss here is that what does this RH actually mean? What does RH mean? You know, for example, this is the red blood cell. This is a red blood cell. On the surface of the red blood cell, there are a number of antigens present. Such as, for example, there is presence of A antigen. For example, this is the A antigen. Okay, there is another type of blood cell, red blood cell, which is having B antigen present on its surface. B antigen. Third, this red blood cell. This is a red blood cell which is having both the antigens present on its surface. That means A antigen and B antigen. B antigen. And then we have the another red blood cell that is like that. For example, this is the red blood cell and it is having no antigen present on its surface. If we will look towards the first cell, this type of cell is actually called as the A blood group. This is actually representing the A blood group. So this is the A blood group. While as if we will look towards this type of the cell, these are all red blood cells. If we will see B antigen present on the surface of the red blood cell, we can call this as the B blood group. This is the B blood group. Okay, then we have the third type of the cell. If the both antigens are present on the surface of the red blood cells, we can call this individual as having AB blood group. This is having AB blood group. Then we have the lost blood cell. This is again the red blood cell. If there is no antigen present on the surface of the red blood cell, we can say that this is having which blood group? This is having beta O blood group. Okay, these are the four important blood groups present in the human population. But the thing is that if we will look towards this AB blood group person, if we will look towards its plasma, that means a non-cellular part of the blood, you will see an antibody present on its plasma that is actually called as a antibody A. That is called as a antibody A. While as if we will look towards this B blood group means that there is antibody A present on its plasma. If we will look towards this AB blood group means a blood group which is having both the antigens present on its surface, on the surface of the red blood cell. And if we will look towards this will be having which antibody present on this plasma? There will be no antibody present on the plasma of this AB blood group patient. That is why this AB blood group, it is also called as a beta what? It is also called as a universal. It is also called as a universal acceptor. That means it can accept the blood from all the patients, whether it is A, whether it is B, whether it is AB, or whether it is O. Then we have the O blood group. O blood group is a blood group which does not contain any antigen present on its surface. But if we look towards the plasma, on the plasma there will be both antibodies present. That means plasma में इसके दोनों बेटा antibodies present होंगे. I mean to say antibody A and beta antibody B. That is why this O blood group, it is also called as the beta universal. It is also called as a beta universal donor. So these are the four blood groups that are present in the human population. Same is the case. There is another blood group present in the human population. That blood group is actually called as the beta RH blood group. That is beta called as the RH blood group. And this RH, why it is called RH? Because it's a term that is related with rhesus monkeys.
in which it was first of all discovered. This Rh antigen, so this is again beta the red blood cell, this is again the red blood cell. If you will see that Rh antigen is present there, for example like that, this is the Rh antigen. If there is Rh antigen present on its surface, we can call this person as the Rh positive, then it is called Rh positive. And if on the red blood cell there is no, this is again the beta red blood cell, अगर इसके surface पे beta Rh antigen present नहीं है, then we can say this is beta called as the Rh negative. So this is called Rh negative. So the first point you will keep in mind that Rh is what? Rh is a term that is related with rhesus monkeys. Rh is what actually? Rh is simply defined as an antigen that is present on the surface of the red blood cells. Just like we have the A antigen, then we have the B antigen, or sometimes both the antigens can be present on the surface, which then indicates which blood group? AB blood group. Okay, now let us move ahead. Now second term is incompatibility. What does that mean, incompatibility? Incompatibility means when there is mismatch. We call this as a mismatch between what? Mismatch with regard to, that means mismatch with regard to blood groups, or with regard to, I can say, blood types. That means when there are two persons, for example, suppose there is person A and suppose there is person B. When there is mismatch between the blood groups, it is having one blood group, it is having another blood group, we call this term as the incompatibility. But this incompatibility will be with regard to what? It will be with regard to beta Rh antigen. अभी Rh इनकम्पेटिबिलिटी में एक्चुअल में क्या होता है, इसमें बेटा ये होता है कि जो मदर होती है, जो बेटा मदर होती है, मदर जो होती है बेटा वो नॉर्मली Rh नेगेटिव होती है, वो Rh नेगेटिव होती है। लेकिन जो फीटस होता है, जो उसके वॉर्म में होता है, वो क्या होता है बेटा, अगर हम उसकी बात करें, वो होता है बेटा Rh, वो होता है बेटा Rh पॉजिटिव. So this is called incompatibility. This is better called as a Rh incompatibility. So Rh incompatibility is actually a mechanism which is characterized by two different antigens present on the surface of red blood cells. Mother is Rh negative and fetus is beta Rh positive. Then what will happen when this type of condition arises? You know, when the blood of the fetus will mix with the mother's blood, the immune system of the mother will get activated. As a result, it will lead to the production of special types of glycoproteins. Those glycoproteins are called beta antibodies. उनको हम बेटा बोलते हैं एंटीबॉडीज. एंड दीज एंटीबॉडीज आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय दिस स्पेशल टाइप ऑफ सेल, एंड दैट टाइप ऑफ सेल इज एक्चुअली कॉल्ड एज द प्लाज्मा सेल. Plasma cell is normally a cell which is actually formed from the B cell. You know, one is the antigen enters into the blood by crossing the first line of defense, that is for example called the skin, then the B cell gets activated. Once the B cell gets activated, it differentiates into plasma cell and memory cell. The plasma cell is the cell that is responsible for the production of the antibodies. So what I am saying, यहाँ पर हम क्या याद रखेंगे बेटा कि Rh incompatibility तब जाके होती है जब मदर का जो ब्लड होता है वो Rh नेगेटिव होता है. इसका मतलब ये हुआ इसके जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनके सरफेस पे एंटीजन Rh एंटीजन नहीं होता है, लेकिन फीटस का जो ब्लड होता है वो होता है बेटा Rh पॉजिटिव. मीन्स उसके जो रेड ब्लड सेल्स होंगे उनके सरफेस पे Rh एंटीजन प्रेजेंट होगा. एज ए रिजल्ट क्या होगा, अगर ये फीटस का ब्लड मदर वाले ब्लड के साथ मिक्स हो गया तो क्या होगा, ये मदर का जो इम्यून सिस्टम है बेटा वो एक्टिवेट होगा. एज ए रिजल्ट वो प्रोड्यूस करेगा बेटा एंटीबॉडीज. वो एंटीबॉडीज फिर क्या करेंगे, वो प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस होंगे और पहुंच जाएंगे फीटस के ब्लड में. वहां पर जो ये रेड ब्लड सेल है उनके खिलाफ जो इस फीटस के रेड ब्लड सेल्स है, क्योंकि वो बेटा Rh पॉजिटिव है, उनके खिलाफ ये एंटीबॉडीज क्या करेंगे, तो ये क्या करेंगे बेटा, दे विल डिस्ट्रॉय द बेटा क्या, दे विल डिस्ट्रॉय द फीटल रेड ब्लड सेल्स. जब फीटस की बेटा रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होगी तब जाके एक कंडीशन होगी, उसी कंडीशन को हम बेटा बोलेंगे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस.
Now, as you can see, why it is called erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis is a term which means erythro. Let us split this term. Erythro is a term which is related with beta red blood cells. Erythro, another name of red blood cells is erythrocytes. Blastosis, what does that mean? Blastosis is a term which means beta destruction. जब ये beta destroy हो जाएंगे. Fetalis is a term which is related with beta with the fetus. तो क्या इसका क्या मतलब हुआ? जब बेटा RH इनकम्पैटिबिलिटी होगी, RH इनकम्पैटिबिलिटी तब जाके होगी जब मदर का जो ब्लड है वो RH नेगेटिव होगा और फीटस का जो ब्लड है वो RH पॉजिटिव होगा। ठीक है बेटा, तो उस टाइम क्या होगा, अगर ये फीटस का ब्लड मदर के ब्लड से बेटा मिक्स हो गया तो क्या होगा कि मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो बेटा एक्टिवेट होगा और वो एंटीबॉडीज बनाएगा। वो एंटीबॉडीज प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करेगी और फीटस के जो रेड ब्लड सेल्स है उनके खिलाफ एक्शन करेगी और उनको डिस्ट्रॉय करेगी। तब जाके क्या होगा बेटा, तब जाके एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होगा। जब ये बेटा आरबीसीज इस मतलब फीटस की डिस्ट्रॉय होगी तो कॉमन सेंस है पहले ही इसमें जो सिम्टम अराइज होगा दैट विल बी द बेटा एनीमिया, दैट विल बी द बेटा एनीमिया। ठीक है बेटा, सेकंड क्या होगा, जब ये आरबीसीज बेटा डिस्ट्रॉय होती है तो आपको पता ही है कि आरबीसीज के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। दैट रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज ए कंजुगेटेड प्रोटीन that is actually made up of two parts. We have the heme, that is called a non-protein part, that normally contains a metallic ion that is called beta iron, and then we have the globin. Globin is the protein part that is actually made up of amino acids. Okay, now once the RBCs of the fetus will get destroyed by the antibodies that have been actually produced by the mother's immune system, then what will happen, the hemoglobin will release। hemoglobin जो है जब वो बेटा वो ब्रेक हो जाएगा, जब वो ब्रेक होता है तो पता ही है आपको वहां से दो इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स निकलते हैं। एक निकलता है बेटा दैट इज कॉल्ड बिली, that is called beta biliverdin, that is called biliverdin, and second one is called beta bilirubin, that is beta called as a bilirubin। इसी bilirubin की कंसंट्रेशन बेटा इस फीटस के ब्लड के अंदर राइज होगी। जब फीटस के ब्लड के अंदर बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तब जाके क्या होगा, और एक डिजीज इसको अटैक करेगी इस फीटस को, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज अ जॉन्डिस। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ जॉन्डिस। सो देयर आर टू मेन सिम्पटम्स which are actually responsible for the death of the fetus. One is the anemia, one is because of the anemia, and second is because of the jaundice. Besides these, इस बच्चे में क्या होगा बेटा, इसको क्या होगी बेटा, इसमें हार्ट डिजीज अटैक करेगी, इसको हार्ट डिजीज भी अटैक करेगी। एज ए रिजल्ट फाइनली उसको क्या हो जाएगा, ये फीटस जो है इसकी बेटा क्या हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी। So this is the main concept of this what we call as the RH incompatibility. I hope आपको ये समझ आया होगा why it is called RH, what does incompatibility mean, and what does this erythroblastosis fetalis mean. Okay, चलिए आगे चलते हैं। अब अगर हम देखें बेटा कि ये जो पिक्चर है, या अभी मैं और एक पिक्चर आपको दिखाऊंगा, एक्सप्लेन करेंगे हम, वो पॉइंट इसमें सारे पढ़ूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए चलते हैं बेटा, आप आगे देखिए मैंने क्या लिखा है। सो फर्स्ट पॉइंट इसमें मैंने ये डाला है बेटा कि RH इनकम्पैटिबिलिटी जो है, कि RH इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या हुआ। एक सेकंड में पहले कलर, ओके देखिए बेटा, तो RH इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स मिसमैच बिटवीन मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड टाइप। What does that mean? तो वही मिसमैच आ गया। मैटरनल का जो ब्लड होगा बेटा, मीन्स मदर का जो ब्लड होगा वो RH नेगेटिव होगा। फीटस का जो ब्लड होगा वो क्या होगा बेटा, वो RH पॉजिटिव होगा। ठीक है बेटा, एक ऐसी कंडीशन होती है जो तब जाके डेवलप होगी जब प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो क्या होगी बेटा, वो RH नेगेटिव ब्लड कैरी करेगी, लेकिन जो उसके वॉम में जो फीटस होगा बेटा वो क्या होगा बेटा, वो RH पॉजिटिव होगा, जैसे मैंने पीछे एक्सप्लेन किया। ठीक है, उसके बाद RH इनकम्पैटिबिलिटी लीड्स टू हीमोलाइटिक एनीमिया। व्हाई इट इज कॉल्ड हीमोलाइटिक एनीमिया। अगर इस टर्म को हम बेटा स्प्लिट करें, हीमो इज अ टर्म दैट इज रिलेटेड विद बेटा ब्लड, इट इज रिलेटेड विद ब्लड। लाइटिक का मतलब क्या हुआ, लाइटिक इज अ टर्म व्हिच इज रिलेटेड विद लाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या हुआ बेटा, लाइसिस इज इक्वल टू, लाइसिस का मतलब ये हुआ बेटा ब्रेक डाउन। ठीक है बेटा, तो हीमोलाइटिक। एनीमिया का मतलब क्या हुआ, एनीमिया इज अ कंडीशन दैट is characterized by the deficiency of hemoglobin।
तो जब डिफिशिएंसी हो जाएगी किसकी बेटा, हीमोग्लोबिन की, उसी को हम बेटा बोलेंगे हीमोलाइटिक एनीमिया। सो जब RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है तो उसकी वजह से बेटा क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होता है और या हीमोलाइटिक एनीमिया होगा। हीमोलाइटिक को एनीमिया को क्यों बोलते हैं वो मैंने बेटा यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट फिर मैंने लिखा है, जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया बेटा, कि RH इज एन एंटीजन दैट इज सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन द rhesus monkeys। तो RH एंटीजन को RH क्यों बोलते हैं, बिकॉज यू नो दिस erythroblastosis fetalis it is also called as a बेटा RH disease। इसका दूसरा नाम है बेटा RH disease। तो RH का मतलब क्या हुआ, RH is a term which is related with the rhesus monkeys because it is the antigen that is also found on the surface of red blood cells of monkeys। This is the thing। Okay, नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने इसमें डाला है वो ये है बेटा कि अगर बेटा ये RH एंटीजन प्रेजेंट होगा बेटा ऑन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल, देन वी कैन कॉल दैट एज RH पॉजिटिव। अगर ये RH एंटीजन बेटा एब्सेंट होता है देन इसको हम बेटा क्या बोलेंगे, RH नेगेटिव। ये चीजें हमने डिस्कस की है। उसके बाद इसमें मैंने ये पॉइंट डाला है कि जब फीटस और मैटरनल ब्लड बेटा जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, स्पेशली क्या होता है बेटा कि फर्स्ट प्रेगनेंसी, वो हम आगे एक्सप्लेन करूंगा बेटा मैं, कि फर्स्ट प्रेगनेंसी जो होती है बेटा वो नॉर्मली सेफ होती है, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में बच्चे को खतरा रहता है। अब ये फर्स्ट प्रेगनेंसी क्यों सेफ रहती है, क्योंकि फीटस और मदर जो है उनके दरमियान एक टेम्पररी कनेक्शन रहता है। उस टेम्पररी कनेक्शन को हम बेटा बोलेंगे प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा के थ्रू नॉर्मली फीटस का ब्लड मिक्स नहीं होता है मैटरनल ब्लड के साथ। एज अ रिजल्ट क्या होगा बेटा, एज अ रिजल्ट क्या होता है कि मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर फीटस की आरबीसीज नहीं आती है। लेकिन जब क्या होता है, जब पार्चुरेशन होती है, पार्चुरेशन का मतलब ये हुआ जब चाइल्ड बर्थ होता है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, इस प्लेसेंटा को बेटा कट करते हैं। जब हम प्लेसेंटा को बेटा कट करते हैं तो क्या होता है कि ये जो फीटस का ब्लड है ये मदर के ब्लड से मिक्स हो जाता है। जब ये मदर के ब्लड से मिक्स होता है एज अ रिजल्ट जो मैंने समझाया आपको कि वहां पर एक्टिवेट होती है एक स्पेशल सेल, उस सेल को हम बेटा बोलेंगे बी सेल। बी सेल से फिर बेटा क्या बनती है, एक प्लाज्मा सेल बनती है और दूसरी मेमोरी सेल बनती है। ये प्लाज्मा सेल क्या करती है बेटा, ये प्लाज्मा सेल का काम ये है कि ये एंटीबॉडी बनाएगी। जो सबसे पहले जो एंटीबॉडी नॉर्मली बनती है जब आप एक्सपोज हो जाते हो किसी भी एंटीजन से, तो वो आप याद रखेंगे बेटा, वो जो एंटीबॉडी होती है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबिन, दैट इज बेटा कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबिन ई, दैट इज बेटा कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबिन ई। तो ये पहली वो एंटीबॉडी होती है या ये पहला वो इम्यूनोग्लोबिन होता है जो तब जाके मतलब इसमें ये प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करती है जब आप एक्सपोज हो जाओगे किसी पर्टिकुलर एंटीजन से, ठीक है। तो लेकिन साथ साथ और एक सेल बनती है जिसको हम बेटा बोलेंगे मेमोरी सेल। उस मेमोरी सेल का काम ये होता है बेटा कि वो मेमोराइज करती है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन को। किसके एंटीजन को, अब यहां कौन सा एंटीजन है, कॉमन सेंस है RH एंटीजन। RH एंटीजन का बेटा दूसरा नाम है, you should not get confused, it is also called as a D antigen, it is also called as a D antigen। okay, तो अब मेमोरी सेल क्या करेगी, मेमोरी सेल इस D एंटीजन को अपने मेमोरी में रखेगी ताकि अगर दोबारा यही एंटीजन फिर से हमारे ब्लड के अंदर आ गया तो उस टाइम ये जो एंटीजन है इसको बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है एट अ क्विकर रेट। दैट इज द फंक्शन दैट इज परफॉर्म्ड बाय दैट स्पेशल टाइप ऑफ सेल दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ बेटा मेमोरी सेल। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे चलते हैं, हम चीजों को हम डिस्कस करेंगे इसमें। देखिए बेटा, ये वाली जो डायग्राम है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए बेटा, यही सारी चीजें एक्सप्लेन करती है ये वाली डायग्राम। अगर हम बात करें बेटा कि ये जो है दिस इज बेटा द फर्स्ट प्रेगनेंसी, दिस इज द फर्स्ट प्रेगनेंसी। देखिए बेटा, ये जो है दिस इज बेटा द फीटस, ये बेटा है आपके पास फीटस, ये फीटस है जो मदर के वॉर्म में है। तो इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल है उस रेड ब्लड सेल के सरफेस पे क्या है बेटा, उस रेड ब्लड के सरफेस पे ये जैसे मैंने पीछे एक्सप्लेन किया ये है बेटा RH एंटीजन। लेकिन इनके दरमियान क्या रहता है, ये एक बैरियर रहता है, ये एक बैरियर रहता है। इस बैरियर को हम बेटा क्या बोलेंगे, इसको हम बेटा बोलेंगे प्लेसेंटा। ठीक है बेटा, तो ये वाला यहाँ कौन सा ब्लड होगा, दिस विल बी द मैटरनल सर्कुलेशन। मैटरनल सर्कुलेशन का मतलब ये हो इट विल रिप्रेजेंट द ब्लड ऑफ द मदर। ओके बेटा, तो दिस इज द फर्स्ट प्रेगनेंसी। फर्स्ट प्रेगनेंसी हमेशा सेफ होती है, सेफ होती है। अब ये फर्स्ट प्रेगनेंसी क्यों सेफ होती है,
क्योंकि ये वाले जो क्योंकि ये जो फीटस है, फीटस के जो आरबीसीज है वो बेटा उनके सरफेस पे RH एंटीजन है। ये वाले रेड ब्लड सेल इसके साथ एक्सपोज नहीं होते हैं, मदर के ब्लड के साथ ये बेटा एक्सपोज नहीं होते हैं। क्योंकि वाई? बिकॉज ऑफ दिस बैरियर, एंड दैट बैरियर इज बेटा कॉल्ड एज अ प्लेसेंटा। एज अ रिजल्ट मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, जिसकी वजह से कोई भी खतरा नहीं रहता है पहले वाले बच्चे को। लेकिन अब क्या होगा जब बेटा एट द टाइम ऑफ क्या होगा, जब बेटा पार्चुरेशन होगी, दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या हुआ? इन द मेडिकल फिजियोलॉजी वी कॉल दिस एज द चाइल्ड बर्थ। इसको हम बेटा बोलेंगे चाइल्ड बर्थ। जब चाइल्ड बर्थ होता है तो क्या होता है बेटा, इसको मैं क्लियर कर लेता हूं। जब बेटा चाइल्ड बर्थ होता है तो उस टाइम बेटा ये प्लेसेंटा कट हो जाता है। जब बेटा प्लेसेंटा कट होता है तो ये जो आरबीसीज होती है ये सीधे पहुंच जाते, देखो बेटा कहां पर पहुंच गई ये ब्लू कलर से मतलब डिजिग्नेट किए गए हैं, तो दीज आर बेटा द रेड ब्लड सेल्स ऑफ द फीटस। ये रेड ब्लड सेल है, यहां पर भी बेटा रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या मैं बोल रहा हूं बेटा, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन जब प्लेसेंटा बेटा कट होता है तो ये जो फीटस की आरबीसीज होती है ये क्रॉस होती है और पहुंच जाती है मदर के ब्लड में। जब मदर के ब्लड में ये आ गए ये आरबीसीज जिनके सरफेस पे RH एंटीजन है, तो क्या होगा, इस मदर का इम्यून सिस्टम जो है बेटा वो एक्टिवेट होगा। जैसे मैंने पीछे समझाया, तो कौन सी सेल एक्टिवेट होगी? बी सेल। ये बी सेल क्या होती है इसको हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे इन द क्लास 12th, दैट्स ऑल अबाउट इम्यूनोलॉजी, दैट इज कॉल्ड बेटा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में बी सेल क्या होती है, टी सेल क्या होती है, सारी चीजें हम वहां एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल अगर मैं आपको जनरल बोलूं व्हाट इज दिस बी सेल, व्हाई इट इज कॉल्ड बी सेल? बी सेल इज अ सेल दैट इज कॉल्ड सो बिकॉज बी स्टैंड्स फॉर बेटा बोन मैरो, इट स्टैंड्स फॉर बोन मैरो। ये वो बेटा लिम्फोसाइट होती है जिसकी फॉर्मेशन भी और मैचुरेशन भी आपके बोन मैरो में होती है। और ये बोन मैरो, ये जो बी सेल होती है बाद में, यही बी सेल जो है ये फिर डिफरेंशिएट होती है इनटू टू टाइप्स ऑफ सेल्स। देखिए यहाँ पर तो ये फर्स्ट प्रेगनेंसी नो देयर इज इसमें कोई भी खतरा नहीं रहता है, लेकिन जब पार्चुरेशन का टाइम आता है तो फीटस की जो आरबीसीज है वो मदर के ब्लड से मिक्स हो जाती है। एज ए रिजल्ट मदर का जो ब्लड इम्यून सिस्टम होता है वो बेटा एक्टिवेट होता है। कौन सी सेल एक्टिवेट होती है? बी सेल। इसको बेटा बोलेंगे बी सेल। व्हाई इट इज कॉल्ड बी सेल? बिकॉज बी स्टैंड्स फॉर बोन मैरो। इट आल्सो स्टैंड्स फॉर बर्सिका ऑफ फैब्रिकस। ये एक लिम्फॉइड ऑर्गन होता है जो बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन बी सेल से ही बेटा कौन कौन सी सेल बनती है अभी मैं दिखाऊंगा आपको। एक बनती है प्लाज्मा सेल और दूसरी बनती है बेटा मेमोरी सेल, दैट इज कॉल्ड मेमोरी सेल। देखिए तो ये एक्टिवेट हो गई, तो इसने दो टाइप ऑफ सेल बनाई। देखिए बेटा प्लाज्मा सेल और सेकंड सेल कौन है बेटा? मेमोरी सेल, ठीक है। अब ये प्लाज्मा सेल का काम क्या है? ये क्या बनाएगी बेटा? ये बनाएंगे बेटा दिस व्हाट वी कॉल एज दिस एंटीबॉडी और द इम्यूनोग्लोबिन। जो ये इम्यूनोग्लोबिन यहाँ बनाती है वो बेटा होता है IgM, दिस इज कॉल्ड बेटा IgM। IgM ही नॉर्मली पहली वो एंटीबॉडी होती है, इम्यूनोग्लोबिन होता है जो पहले प्रोड्यूस होती है जब आप प्राइमरी एक्सपोज हो जाते हो किसी एंटीजन के साथ। तो ये बेटा आपके पास प्लाज्मा सेल है, ये बेटा आपके पास मेमोरी सेल है। अब ये प्लाज्मा सेल क्या करेगी? ये बनाएगी एंटी RH IgM। एंटी RH का मतलब क्या हुआ कि ये वो एंटीबॉडी होगी, ये बेटा वो इम्यूनोग्लोबिन होगा जो किसके खिलाफ एक्शन करेगा? इस RH एंटीजन के खिलाफ, ठीक है बेटा। तो ये प्राइमरी ये होगा बेटा ज्यूरिंग। अब क्या होगा, अब अगर बेटा सेकंड प्रेगनेंसी आती है तो इस मेमोरी सेल का काम क्या है? जैसे मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया, इस मेमोरी सेल का काम बेटा यहां पर ये है कि ये मेमोरी सेल जो है ये इस जो ये RH एंटीजन है इसके स्ट्रक्चर को अपनी बेटा मेमोरी में रखेगी, ताकि अगर दोबारा फिर से यही वाली कंडीशन अराइज होगी उस टाइम एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है एट ए क्विकर रेट, और वो एंटीबॉडीज फिर प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, ये फिर पहुंच जाती है फीटस के ब्लड में और वहां पर डिस्ट्रॉय करती है किन ब्लड सेल्स को? जो फीटस की आरबीसीज होती है। तो वही होता है बेटा। देखिए ये सेकंड प्रेगनेंसी है, जब सेकंड प्रेगनेंसी में फिर से आया, अब देखिए बेटा ये देखिए ये फिर से RH फीटस जो है फिर से बेटा ये RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है,
ठीक है बेटा। अब यहां पर ये क्या है, ये जब अब ये मैटरनल ब्लड है, ठीक है ना बेटा। इसने ऑलरेडी क्या बनाए हैं, इसने बेटा ऑलरेडी बेटा एंटीबॉडीज बना के रखी है इन द मतलब इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। तो ये वाली ये जो है हमने देखा यहाँ पर anti-RH इम्यूनोग्लोबिन M। अब जब फिर से ये होगा तो बेटा ये मेमोरी सेल एक्टिवेट होगी, जो ये एक्टिवेट होगी तो यहाँ से अब प्लाज्मा सेल एक्टिवेट होगी। प्लाज्मा सेल अब काम करेगी, वो प्लाज्मा सेल कौन सी एंटीबॉडी बनाएगी, इम्यूनोग्लोबिन G। इम्यूनोग्लोबिन G ही एक ऐसी बेटा एंटीबॉडी होती है जो सबको पता है, हमने पढ़ा भी है कि इम्यूनोग्लोबिन G एक ऐसी एंटीबॉडी होती है जो क्रॉस करती है प्लेसेंटा को। जब ये क्रॉस करेगी प्लेसेंटा को तो ये पहुंच जाएगी बेटा, ये जो देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, दिस इज द बेटा द इम्यूनोग्लोबिन G। यहाँ पर भी बेटा है ये इम्यूनोग्लोबिन G। ये इम्यूनोग्लोबिन G जो एंटीबॉडी है या इम्यूनोग्लोबिन है, ये फीटस के आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से इस बच्चे में, इस फीटस में हीमोलाइटिक एनीमिया होगा और उसी की वजह से एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस होगा। अब जब ये आरबीसीज डिस्ट्रॉय होगी, जैसे मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, इसमें बेटा क्या होगा, इसमें ये एनीमिया होगा, इसमें बेटा जॉन्डिस होगा, इसमें हार्ट फेलियर के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, कुछ और भी डिजीजेस अटैक करते हैं इस फीटस को, जिसकी वजह से फाइनली उस फीटस की बेटा डेथ होती है। दिस इज द सो वही लिखा है इसमें इम्यूनोग्लोबिन G एंटी-RH एंटीबॉडीज ये क्रॉस करती है प्लेसेंटा को और अटैक करती है फीटस के आरबीसीज को, काजिंग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ओके बेटा, तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो दिस इज बेटा द कंसेप्ट ऑफ बेटा दिस RH इनकम्पैटिबिलिटी, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। थैंक यू।